हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 11वीं क्लास के हों, चाहे +2 हो, जिनके सीबीएसई एनसीईआरटी हो, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड को, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट और भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाई जाएगी और जो है स्क्रीन पे दिखाई भी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is aquatic biomes. Aquatic biomes is here. There is the most important. The aquatic ecosystem are constituted by their water bodies. The water cover about 1/3 of the Earth's surface. The origin of the life look a place aquatic ecosystem. Therefore, this is ecosystem make a important component of our biosphere. The aquatic ecosystem are classified on the basis of the salinity into the following two types. The first is a fresh water and second is marine. That is the most important here. And the come of first fresh water ecosystem. That is the most important here. The water on land, which is a continuously is a cycling and has a low salt content known as a fresh water. There is a fresh water is a called, there is a very low amount of salt content in this type of water. And the study of fresh water ecosystem is known the there's a limnology. The limnology is there a study of the fresh water ecosystem is called limnology. The fresh water are classified into two types. The first is standing or still water. The Atlantics means pond, lake, box and swamps. And the second is a running water, means lotics. There is a spring, mountain, brooks and stream and river. That is the most important here. And commonly found of flora in the pond and lake include us is a Baptoplacotus, fresh floating macroscopic plants and such as algae is diatoms. And floating plant here is a Bistia, water lessons and the limana and azolla. And the rooted plant here is a Hydrilla and Vascularia and Tapa and water lily. And second is the common animals is a pond and the lake include here is a Zuma plant, cottons, free floating microscopic plant and such as the protozoans and there is a crustaceans and the actively is a swimming fish, frog and tortoise. And the bottom dwells like a hydra, bombs, pavans and crabs is snails. There is the most important is animal here, and the birds such as the herons, waterfalls and duck is occur in and around water. The wetland here are the between their aquatic and terrestrial ecosystem, and they is show on the Addis effect on for the ecotones. The ecotones is the transitional zones between two ecosystem. Example of wet zone are swamps and the marshes as the mangroves. दोस्तों यहाँ पर जो है जलीय बयोम यानी एक्वाटिक बायोम्स के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, जलीय बयोम, एक्वाटिक बायोम्स मतलब यही हुआ कि जलीय बयोम का निर्माण जो जलाशय द्वारा होती है। क्योंकि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि हम जल की बात कर रहने जा रहे हैं। जल पृथ्वी की सतह पर लगभग
3/4 भाग जो है घेरा हुआ है। यानी देखा जाए जैसे हमारे शरीर में होता है वैसे ही जल जो है पृथ्वी पर भी घेरा हुआ है। जीवन का आरंभ अगर देखा जाए तो जलीय पारितंत्र में ही हुआ है, जो साइंटिस्ट ने भी प्रूफ कर दिया है कि जो जीवन का आरंभ हुआ है वो जलीय तंत्र में ही हुआ है। अंततः यह पारितंत्र हमारे जैव मंडल का एक महत्वपूर्ण भाग माना जा सकता है। कहते हैं लवण के आधार पर जलीय पारितंत्र के वर्गीकरण के 2 प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक जो होगा लवण जलीय यानी फ्रेश वाटर, और एक जो होगा समुद्री यानी मैरीन, जो कि 2 इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है जो है अलवणीय पारितंत्र। तो अलवणीय पारितंत्र क्या है? देखिए, अलवणीय पारितंत्र में जो है जमीन पर जल जिसका चक्र निरंतर चलता रहता है और जिसमें लवण की मात्रा अत्यंत न्यून हो, यह अलवण जल कहलाता है। अलवणीय जलीय जो है पारितंत्र का अध्ययन, ठीक है, उसको हम सैरोवर विज्ञान कहते हैं, यानी लिमोलॉजी कहलाता है, सैरो विज्ञान कहलाता है। अलवणीय जलाशय के 2 समूहों में विभाजित किया गया है। एक तो किया गया स्थिर या रुका हुआ जल, यानी जिसको हम रुका हुआ जल कहते हैं, जो बड़े बड़े जो है पाउंड पाए जाते हैं। इसमें लैट्रिक्स कहते हैं, यानी इसको लैंट्रिक्स कहते हैं। जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, दलदल हो गया, अनूप्स हो गया, तो यहाँ पर जो जल होता है रुका हुआ होता है। लेकिन दूसरा जो है आपको बहता हुआ यानी सरिता जल कहते हैं, जिसको हम लॉटिक्स कहते हैं। लॉटी का उदाहरण होगा जैसे झरना, पर्वतीय जल स्रोत, धाराएँ और नदियाँ। तो ये सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात अगर देखा जाए तालाब और झील के समानता पाई जाने वाले पादप जात, देखिए कौन कौन से जो है पादप जात तालाब और झीलों में पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो पादप लवण जो है मुक्त रूप से तैरने वाले सूक्ष्म पादप जैसे शैवाल, डाइटम पाया जाता है। और तैरने पलम करते वाला पादप यानी तैरने और प्लवन करते हुए पादप जो है प्लिस्टिया, जलकुंभी, लेमना, ठीक है, एजोला, कमल, ये सारे पाए जाते हैं। अगर तीसरी बात देखा जाए यहाँ पर जड़ युक्त पादप, यानी जिसमें जड़ पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम पादप की बातें कर रहे हैं जो कि फ्लोटिंग था, अब जो है हमारा रूटेड जो प्लांटेड है। यहाँ पर कहा जाए अगर जड़ युक्त पादप की बात करें हम तो इसमें हाइड्रा सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आएगा बैलिसोनेरिया, कमल, सिधारा और जल कुमिनंदिनी यानी लीली आदि आएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखा जाए दूसरा तालाब व झीलों में सामान्यतः पाए जाने वाले प्राणी, अब कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं तो ये भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जल में मुक्त रूप से तैरने वाले सूक्ष्म जंतु जैसे प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियस या प्राणी पाए जाते हैं। अगर देखा जाए सक्रिय रूप से तैरने वाले जैसे मेढक, मछलियाँ व कछुआ यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। अगर तीसरी बात देखें तो जल में रहने वाले जैसे हाइड्रा, क्रूमी, फ्रॉन, केकड़े, घेंगे आदि भी पाए जाते हैं, जिनके लिए सर्वाइव करने के लिए अच्छा कंडीशन प्राप्त होता है। अगर हम पक्षी जैसे बगुला, जलमुर्गी, बत्तख आदि पानी के आसपास पाए जाने वाले जो है पक्षियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहते हैं जलीय स्थलीय पारितंत्र के मध्य जो है आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स पारितंत्र होते हैं जो कोर प्रभाव दिखाते हैं और एक जो है इकोटोन्स बनाते हैं। इकोटोन 2 पारिस्थितिक तंत्र जैसे स्थलीय और भूमि जो संक्रीमन बीच का क्षेत्र होता है, और दलदल के उदाहरण जो है अनुपम्स यानी कश, मार्शल्स और जो है गयान यानी मैंग्रोव्स आदि होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ मैरीन इकोसिस्टम। द मैरीन इकोसिस्टम there is come to the distribution. The distribution is the most important here. The marine ecosystem cover nearby the 71% of the Earth's surface with on average depth about 4,000 meter. The 4,000 meter is the most important, the average surface, and 71% the Earth's surface. The freshwater rivers is a eventually they are empty into the ocean. The salinity of open sea is a 3.6% and the aquatic constant of sodiums and chlorine make up the nearby the 86% of the sea salt, and the rest is due to other elements such as sulfur, magnesium and potassium and calcium. That is the most important here. And the temperature here, the range of temperature is a variation is a much less sea than on the land through there near the surface. It is a considerable from -2 Celsius in on aquatic oceans, and 27 Celsius is the warmer water as a specific ocean. In the deeper layer of temperature is the contact at about 2 Celsius. And here the light is reaches up to the content depth only. The deeper region is permanently is dark.
The deeper region is permanently dark. And there come to the pressure. The pressure increase with the depth in the ocean, and it is a 1 atmosphere near the surface and 1000 atmospheric at the greatest depth. That is the most important. And come to the tides. The tides is their gravitational pull of the sun and the moon. The causing the tides is the ocean. At the time of full moons and the new moon, tides are highly, and that is called to the spring tides. And then at the quarter moon, their tides are exponentially low and known as the low tides of naps of tides. And there is the most important, and the flora and the fauna. There is the life is the ocean is a limited, but is a biodiversity is very high as the compared to the terrestrial ecosystem. The almost every major groups of animal occur somewhere or the outer in the sea, excepted the insect and vascular plant, which are the completely absent in the marine ecosystem. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि समुद्री पानी तंत्र किस प्रकार अपना विशिष्ट स्थान रखता है और इनका विशिष्ट कार्य है। कहते हैं समुद्री पानी तंत्र जो होती है, सबसे पहले तो हमारा आता है वितरण के ऊपर कि ये कहाँ तक फैला हुआ और इसकी क्या कंडीशन है। अगर देखा जाए समुद्री पानी तंत्र जो है पृथ्वी का लगभग 71% भाग घेरा हुआ है और इसकी औसत गहराई लगभग जो है 4000 मीटर माना जाता है। कहते हैं लवण जल जो है लवण जलीय नदियों अंत में समुद्र में गिरता है और खुले जो है समुद्र की लवणता लगभग जो है 3.6% होती है, जो लगभग नियत रहती है, यानी ये रहती है। समुद्री लवण का लगभग जो है 86% सोडियम क्लोरीन निर्मित होती है और से सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है और कैल्शियम पाया जाता है। अगर देखा जाए तापमान तो कहते हैं समुद्र में तापमान परिवर्तन का पहाड़ स्थल की अपेक्षा अधिक न्यून होता है और यह मान अंटार्कटिका समुद्र में -2 सेल्सियस तथा प्रशांत महासागर गर्म जल का जो है 27 सेल्सियस के मध्य माना गया है। कहते हैं समुद्र की गहराई में तापमान लगभग 2 सेल्सियस से लगभग नियत होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस बात को। अगर हम प्रकाश की कंडीशन देखें तो प्रकाश एक नियमित गहराई तक पहुंच पाती है और अधिक गहरे भाग सदैव अंधकार में रहता है। तो कहते हैं जितना गहराई होगी उतना अंधकार में तो रहेगी, ये जनरल सी बात है। उसके पश्चात है दाब। देखिए समुद्र में गहराई के साथ दाब के मान में वृद्धि होती रहती है। यह मान सतह पर जो है एक वायुमंडलीय दाब के लगभग व सर्वाधिक गहराई में 1000 वायुमंडलीय दाब के बराबर माना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ज्वार भट्टा। देखिए ज्वार भट्टा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। ज्वार भट्टा कब आता है? कहते हैं सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भट्टा आता है, यानी जब सूर्य जो है सूर्य जो है चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है तो पृथ्वी में जो होता है ज्वार भट्टा आता है। और ये ज्वार भट्टा कब आता है? पूर्ण चांद्र व नव्र चांद्र के समय ज्वार भट्टा आता है। या तो अमावस्या के दिन आएगा या पूर्णिमा के दिन जो है ये ज्वार भट्टा देखने को मिलेगा। इसे वृत्त ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। कहते हैं जो चंद्र में ज्वार भट्टा अत्यंत कम ऊंचाई तक होती है, इसे लघु ज्वार यानी निपल टाइड्स भी कहते हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि ज्वार भट्टा क्यों आता है। जब चंद्रमा और सूर्य जो है आपस में गुरुत्वाकर्षण कारण जो है अपनी ओर आकर्षित करती है तो पृथ्वी भी आकर्षित होती है, जिसके वजह से जो है पानी की बहुत बड़ी लहरें उठती है, जिसको ज्वार भट्टा के नाम से जाना जाता है। ये सदैव जो है पूर्णिमा को आती है या अमावस्या के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं उसके बाद है हमारा पादप जात एवं प्राणी जात। पादप जात एवं प्राणी जात क्या होती है? कहते हैं समुद्र में जीवन सीमित है, लेकिन स्थलीय परितंत्र तंत्र की अपेक्षा इसकी जैव विविधता अत्यधिक है। लगभग सभी जो है मुख्य जंतु जो है समुद्र में एक या दूसरे स्थान पर पाए ही जाते हैं, केवल कीटों व संवहनीय पादपों को छोड़ के। ये कीट ने वहाँ पर जो है जलीय स्थल पे नहीं पाया जा सकता, जो समुद्री पारितंत्र में पूर्णतः अनुपस्थिति होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। आगे टॉपिक करने से पहले एक बात जो है त्रिपाण स्टैंडर्ड आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर करोगे तभी उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा जो कि इन वीडियो की उनको सख्त ज़रूरत है। और ये तभी संभव होगा जब आप इसके लिए अग्रसर रहोगे। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना उनके घर पे जाने की ज़रूरत है, ना उनको कुछ
बोलने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है, आपको पता है कि आपको यूट्यूब पे जो है एक शेयर का बटन होगा। शेयर पे आपने क्या करना है, हाँ, उंगली फेरना है और उसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को कॉपी कर देना है। इससे ये होगा, जिन बच्चे जो कांटेक्ट में आपके होंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, तो उन तक जो है आपके थ्रू ही ये वीडियो मिलेगा। अगर वो देखेंगे, अगर उनको पसंद आएगी तो ये कॉपी को जो है वो रख लेंगे या उसको जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। इससे ये होगा कि वो जब भी मैं वीडियो डालूंगा, उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि हर जगह जो है आज बड़े बच्चे जो हैं, बड़े घर के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास बड़े बड़े ट्यूशन नहीं होता, जिनके पास अच्छे समझ नहीं होती, और वो हिंदी मीडियम के होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको सपना जो होता है मेडिकल लेने की होती है। लेकिन जब भी वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो है अपनी इंग्लिश के वर्डों में उनको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, आगे वो पहले दिन ही गिव अप कर देते हैं कि मुझसे मेडिकल नहीं हो सकता, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जो मुझे हिंदी में इसको पूरा ट्रांसलेट कर सके। इसलिए आपको पता है कि त्रिपाठी सेंटर जो है इसको हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, में भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, साथ में डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में हो रहा है, जो कि आपके लिए डबल डोज के समान है। तो इसमें दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि जग कल्याण के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता। देखिए, आप ऐसे ही आए दिन आप लोग जो हो व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना स्टेटस लगाते रहते हो, एक दिन कम से कम आप किसी पढ़ाई लिखाई का स्टेटस लगा के देखो। देखिए, इसका प्रभाव सब पे पड़ेगा और सब आपको अच्छे भी कहेंगे, क्योंकि आपने कुछ एजुकेशन वाली बात लगाई है, जिससे कि दूसरे बच्चों को हेल्प भी मिल सकता है। और क्या पता जिन भी बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो वो आपको शुक्रिया अदा भी करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बात की कोई मान्यता नहीं है कि वो बच्चा को प्राप्त हो चाहे ना हो, सिर्फ हमने अपना कर्म करना है। जैसे त्रिपाठी सेंटर जो है अपना कर्म कर रहा है। चाहे देखिए, मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वही सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो लीव कर जाएंगे। एक जर्नल सी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि यूट्यूब पे न जाने कितने लाख वीडियो पड़े हुए हैं इसी एक टॉपिक पे, तो मेरे ही वीडियो क्यों देखेंगे बच्चे। देखिए, मेरा वीडियो देखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश और आपके ही लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। साधारण भाषा, साधारण लैंग्वेज, साधारण सोच विचार। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है इसमें विस्तृत ज्ञान होती है, लेकिन आपके ही लैंग्वेज में होता है। तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा के बराबर हो जाता है। तो इसमें आपको सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, आपने इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना है। The next topic is ecological successions. There is the most important topic here, ecological successions. The biotic community and dynamics in a nature and change over a period of time. The process by which a community of plant and animal species in an area and are replaced by another over a period of time is known as the ecological succession. When here's what do you mean to the ecological succession? The process which the community of plant and animal species in on the area are replaced by another over period of time. There is known as the ecological successions, and the both biotic and abiotic component are involved in this change. There is the most important here. The both biotic and abiotic component is involved in this change. This change is about the both of activity of the community as well as the physical environment of the particular area, and the physical environment after influence of the nature, direction, rate and optimals is a limit of changes, and during sensation is both plant and animal community undergoes. And there are two types of sensations, is a primary sensations and secondary sensation. There is a first come here is a primary sensations. The primary sensations take place over where of as an unoccupied area such as a rock outcrops and the newly formed deltas and the sand dunes is emerging is a volcans is land and the is a lava flow as well as the glaciers meridian and the mud area exposed by the statings glacier and where no community has existed to the previously in their plants that involved it to the varied land and the varied soils. Initially there is a absent for the first time to call pioneers and species their assemblies of their
Pioneers is a plant is a collective called Pioneers community. A Pioneers is a species generally show a high growth rate but short lifespan. That is the most important here. There is a primary sensation is a much more difficult to absorb than a secondary sensations because there are relatively very few places on the earth that do not already have a community of organisms, and the communities that initially inhabit our bare area is called is a pioneers community. The pioneers community after some time get replaced by their another community with a combination of different species, and this is a second community get replaced by third community. This process is a community sequence which their community is replaced by another community. Here show the ordinary sequence of primary sensation. Here is the pioneer stage and the intermediate stage and the climax community. There is the most important community here show in this diagram. And there is the first is the break rock, leaf chains, small animal plant, leaf chains, animal herbs, grass, and the grass shrubs and studied informs to trees. And there is studied turtle trees here. There is a pollinator trees, orderly sequence of primary sensation here. There is the installation of temporary community that is formed and replaced during to the sensation is called a stage of sensation or serval community. The terminal of final stage of sensation from to the community which is called climax is a community. A climax community is a stable, is a mature, more complex and a long lasting. There is an entire sequence of community is given area. Is the settings each other during the course of sensation is a term sure. There is a figure is in here. Here shown this picture is a secondary sensation on the land. There is the most important here. The hair present of there is a flowers flat, annual weeds, and the 1 and 2 years perennials and the grass, shrub, and the other perennials. And there is there different types of secondary sensation in this land. That is shown in this diagram. The animals of such a community also exhibit of the sensation which to be great extent of determination by plant sensations. However, animals of such a sensational stress are also influenced by their types of animals that are able to migrate from the neighboring and community. A climax is the community as the long as the undistribute. There is an undistributed is a climax is the community. There is a demand is a relatively stable is a dynamics equilibriums with their prevalence of is a climate and habit factor sensation that occur on the land. There is a moisture content is a low such as or bare rocks and known as the is a extract, and the sensation that will take place in a water body like a pond, a lake is called hydroth. And there is a secondary sensation here. The secondary sensation is their development of a community which form after their existence of natures and their natural vegetation that constitute as the community is removed or disturbed or destroyed by the natural event like hurricanes or forest fire is by a human relative event like a tillings of harvesting land. And secondary sensation is a relative fast as the soil has to be necessary of nutrient as well as the large pool of seeds and other dormant stage of organism. तो यहाँ पर जो आया है पारिस्थितिक अनुक्रमण, देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि पारिस्थितिक यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है। कहते हैं प्रकृति में जैविक समुदाय गतिशील होते हैं और कुछ समय के उपरांत उनमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। कहते हैं यह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के पादप समुदाय और प्राणी जातियों के स्थान पर कुछ कुछ समय बाद दूसरी समुदाय जाति आ जाती है, ये पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। यानी आप साफ शब्दों में समझ सकते हो कि जो जैसे कि हम अगर किसी क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र में कोई और व्यक्ति आगे रहने लग जाता है, यानी ये सब जो है क्षेत्र बदलते रहते हैं, तो उसी को ये हम क्या कहते अनुक्रमण कहते हैं। यानी ये पादप प्राणी जात में भी ऐसा संभव होता है कि कभी कभी कोई क्षेत्र जो होता है किसी जीव के लिए जो है कंडीशन अच्छा बन जाता है और कभी कभी वही
ख़राब कंडीशन बन जाता है तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ पक्षी जो होते हैं गर्म इलाके के तलाश में जो होता है ठंडे भारत से माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ दूसरे गर्म क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये भी बात प्लांट में भी यहाँ पर अनुक्रिया करती है। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विषय के पादप समुदाय यानी एक पादप समुदाय और प्राणी जाति स्थान पर कुछ समय बाद दूसरे समुदाय जाति में चले जाते हैं, उसी को हम अनुक्रमण कहलाता है, यानी माइग्रेट कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। इस परिवर्तन में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की घटक भाग लेते हैं और यह परिवर्तन समुदाय की गतिविधियां यानी क्रियाकलाप के साथ साथ उस क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण क्षेत्रों के कारण ही होता है। यानी उस क्षेत्र में जो होता है जैविक अजैविक दोनों तरह की गतिविधियां देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं अगर देखा जाए भौतिक पर्यावरण प्रायः जो है प्राकृतिक दिशा परिवर्तन दर परिवर्तन की स्तंभ सीमा सभी को प्रभावित करती है। अनुक्रम के माध्यम पादप प्राणी दोनों समुदाय में परिवर्तन होते ही रहते हैं। कहते हैं अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक अनुक्रमण होता है और दूसरा जो होता है द्वितीय अनुक्रमण होता है। कहते हैं अगर प्राथमिक में देखोगे तो वो मुख्य रूप से रहेगा, लेकिन द्वितीय अनुक्रमण देखोगे तो उसमें गौण बातें रहेगी, सम्मिलित होगी। यहाँ पर पहला आता है प्राइमरी यानी प्राइमरी अनुक्रमण। देखिए प्राइमरी संश्लेषण क्या होती है, तो इसमें मुख्य बात यही आती है कि अनुक्रमण निम्न जो है प्रति गैर आबादी या उन अधिविकसित क्षेत्रों में होते हैं जैसे चट्टान ध्रस्त यानी आउटक्रॉप्स या जो है नवनिर्मित जलटा और बालू डिब्बे से प्रकट होने वाले ज्वालामुखी द्वीपों और लावा सरोवरों के साथ साथ हिम नदियों हिमोद यानी ग्लेशियर मोरियंस यानी कि निर्वतीय हिम नदी ग्लेशियर के कारण बने प्रकृति क्षेत्र जहाँ पहले से कोई समुदाय वास न कर रहा हो। कहते हैं प्रतिभूमि जहाँ आरंभ में मृदा नहीं होती है पर पहली बार उगने वाले पौधे जो है अग्रगामी यानी पेलोनियर्स जाति कहलाती है। कई अग्रगामी पौधे आपस में मिलकर एक पादप समुदाय बना लेते हैं जिसे हम आगामी समुदाय भी कहते हैं। अग्रगामी जो है जाति में सामान्यतः जो है उच्च वृद्धि दर होती है, लेकिन उनकी जीवन अवधि बहुत ही कम या अल्प होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखा जाए यहाँ पर द्वितीय या गौण अनुक्रमण की अपेक्षा जो है मुख्य अनुक्रमण देखना अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे स्थान बहुत ही कम है जहाँ जीव समुदाय पहले से मौजूद न हो। जो समुदाय पहल जो है प्रति क्षेत्र में बसते हैं उगते हैं उन्हें ही अग्रगामी या पनियर समुदाय कहा जाता है। कुछ समय के उपरांत इस पनियर समुदाय के स्थान पर द्वितीय समुदाय आ जाते हैं, जिसे कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। आगे चलकर ये दूसरे समुदाय के साथ पर तीसरे समुदाय आ जाते हैं और इस प्रकार प्रक्रिया जो है अनुक्रमण बार चलती रहती है, यानी कि एक समुदाय के स्थान पर दूसरा समुदाय आता ही रहता है। तो ये समझना बहुत आपके लिए आसान है कि कभी भी जो होता है एक समुदाय आता है, एक समुदाय छोड़ के चला जाता है, फिर दूसरा समुदाय आता है, फिर दूसरा समुदाय छोड़ के चला जाता है, तो तीसरा समुदाय जो है आके बसता है। तो इस प्रकार जो है क्रिया चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं अनुक्रम बार कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो कि प्राथमिक अनुक्रमण के सुव्यवस्थित जो है अनुक्रमण किया गया है। अगर देखोगे तो पहले आपको दिखेगा कि नग्न चट्टान, जहाँ पर चट्टान के रूप में सिर्फ कोई जीव जंतु पनप नहीं रही है, जिसको हम पायनियर स्टेज कहते हैं। लेकिन पायनियर स्टेज सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहती है, वहाँ पर छोटे शायद केन आ जाता है, फिर छोटे 1 वर्षीय पादप उगने लग जाता है, फिर वहाँ पर बहुवर्षीय पौधे उगने लग जाते हैं। और ये किस में चला जाता है? इंटरमीडिएट स्टेज में चला जाता है, जहाँ पर जो है वृक्ष अधिक जो है घास छाया रहने वाले सारे पाए जाते हैं। लेकिन जब ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी में जाता है तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े वृक्ष के रूप में ये परिवर्तन हो जाता है। तो यही कंडीशन जो है कंटिन्यू चलती रहती है और इससे जो है पादप अपने आप को विकास के लिए अग्रसर होते रहते हैं। कहते हैं इसमें जो संक्रमित अस्थायी समुदाय बनाता है वह अनुक्रमण के दौरान प्रतिस्थापित हो जाता है। इसे अनुक्रमण की एक अवस्था या अनुक्रमण सीवल समुदाय भी कह सकते हैं। अनुक्रमण की अंतिम चरण अवस्था में जो समुदाय बनता है उसे हम चरम यानी क्लाइसोमैक्स जो है समुदाय कहलाता है। यानी लास्ट में जो आपने देखा हुआ क्लाइमैक्स जो आपको दिखेगा था, ये अंतिम समुदाय होती हैं। और ये चरम समुदाय स्थायी परिव्यक्त और अधिक जटिल और दीर्घकाल तक जीवित रहने वाले होते हैं, क्योंकि ये क्लाइमैक्स में जाते हैं तो ये काफ़ी जो है दीर्घकालीन जीवित रहने वाले पौधों में आ जाता है। कहते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में समुदाय का संपूर्ण अनुक्रमण जो अनुक्रमण के दौरान एक के बाद एक कर होता रहता है उसे हम करीबन शेयर कहलाता है। जैसा कि यह चित्र में भी आप देख सकते हो,
यहाँ चित्र में भी वही बात को दर्शाने की कोशिश किया गया है कि भूमि पर द्वितीय अनुक्रमण। देखिए अगला हम ब्राह्मण्स फील्ड देख लेते हैं जहाँ पर कोई जीव जंतु उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन वही अगर 2 से 3 ईयर के बाद देखोगे तो एनिमल्स जो होंगे बढ़ते चले जाएंगे और इस प्रकार जो है धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेंगे और ये जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँच जाएंगी। तो ये पहुँचने में कम से कम कहते हैं 200 साल जो है वेरिएबल होती ही होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष ये रखती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक पादप जो है अनुक्रमण द्वारा निर्धारित होने वाले ऐसे समुदाय के प्राणियों में भी अनुक्रमण होता है। फिर भी आसपास के समुदाय में प्रवास करने योग्य जंतुओं द्वारा भी ऐसे अनुक्रमी अवस्थाओं को तंतु जो है प्रभावित करता है। यानी यहाँ जंतु जो है काफ़ी प्रभावित करते हैं, जबकि ये चरम समुदाय शांत और दृढ़ रहता है। यह विशेष मौजूद जलवायु और आवास कारकों के साथ गति संतुलन में अस्थायी होते हैं। कहते हैं नग्न चट्टानों जहाँ की नमी की मात्रा कम होती है जैसे स्थानों पर होने वाले अनुक्रमण को जो है शुष्क तारावी यानी जीरोसियर कहा जाता है। यानी जीरोसियर कहलाएगा। जलाशय जैसे तालाब झील में होने वाले अनुक्रमण को जलारंभी यानी हाइड्रोसियर्स कहलाता है। अगर देखा जाए द्वितीय अनुक्रमण का तो द्वितीय अनुक्रमण भी कुछ इसी बात को दर्शाता है कि ऐसे प्राकृतिक वनस्पति जो एक समुदाय में बनती है जब प्राकृतिक घटनाएं जैसे हेरिकेन या जंगली आग या मानव में संबंधित क्रियाकलापों यानी जो है भूमि की जुताई एवं कटाई आदि के कारण नष्ट जो वृक्ष हटा दिया जाता है, तो उसके बाद वहाँ पर परिवर्धित होने वाले समुदाय को द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। यानी ये द्वितीय अनुक्रमण में आता है। कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण जो है अपेक्षित तेजी से बढ़ता है क्योंकि मृदा में आवश्यक पोषक तत्व के साथ साथ बीजों का बड़ा भंडार और जीवों के अन्य प्रबल अवस्थाओं भी उपलब्ध होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है।